Hello, everybody. Welcome to our podcast, Channel Sanvad Sunbeam School Varuna. I am your host, Samriddhi Mankhand. Today, we have the privilege of hosting a true scholar and educator whose life is a beautiful tapestry of language, culture, service, and learning. Please join me in welcoming a dedicated Hindi and Sanskrit facilitator, an NCC officer, a translator, an All India radio artist, and a profound mentor, Mr. Murlidharan Sethuraman, who has come all the way from Madurai to Varanasi for Kashi Tamil Sangamam 4.0 to promote Tamil language as it is his mother tongue. Today, we will hear his amazing journey and learn how languages can connect cultures. Thank you, sir, for taking your time from your busy schedule. Sir, with your permission, shall we begin the interview? Sure. Vanakkam. Let's begin with the questionnaire round. Sir, you grew up speaking Tamil, but you mastered Hindi and started teaching it. What inspired you to take that path? That's really a wonderful question. I started my career as a Hindi teacher. I got the motivation from my sister who started learning first before me. And she encouraged me to learn Hindi. While doing that, slowly I got the feeling of that Hindi is a national language and we should learn it. Hindi is a language which can connect all the people of our country. So that is another motivation which I had in my mind. That is the reason I started doing the Hindi learning. And initially I started this as a learning, but it has become my profession. Yes. And passionately, I'm doing that now. Indeed, sir. You are weaving two threads together. So now let's move to the next question. How did your experience of learning Hindi influence the way you teach Tamil speaking students? That's quite important. Any language, not only Hindi, any language, when you teach students, for example, students of Tamil Nadu, they are good at mother tongue Tamil. Whereas we are going to teach them a new language, that is Hindi. Of course, language Hindi is new for them, since it is not their mother tongue. ऐसे समय में तमिल की सहायता के साथ हिंदी सिखाना बहुत आसान है क्योंकि इन बीएड वी लर्न easy to hard, known to unknown. Similarly, Tamil is known language to those children. And through their known language Tamil, when we teach Hindi, it becomes easy for them to learn, to teach us also to learn, make the children to learn. So that is the way. When you compare with the mother tongue, that is Tamil, with Hindi, automatically the interest rises in the minds of the students and they start learning it. That's a fascinating perspective, sir. Teaching Tamil in Tamil Nadu sounds unique. आप तमिल पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदी को रोचक कैसे बनाते हैं? ये बहुत सिंपल है. टीचर के लिए किसी भी विषय को बच्चों तक समझाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये जो कला है, यानी कि शिक्षण कला है, उसमें माहिर होना, निपुण होना ज़रूरी है. तभी वो सफल शिक्षक बनते हैं. किसी भी विषय को, उदाहरण के लिए एक कविता सिखाते हैं तो कविता को मेरी सिखाने की शैली होती है, कविता को गाकर सिखाओ, नाटक को अभिनय के साथ सिखाओ और कहानी को वर्णनात्मक सिखाओ. तब क्या होगा, बच्चों को समझने में आसान हो जाता है. उदाहरण के लिए हम एक शेर की कहानी सुनाते हैं. एक जंगल था, उसमें एक शेर था. ऐसा कहने से उनको पढ़ने में कुछ रुचि नहीं आएगी. एक बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ जंगल का राजा कौन है? Immediately you will get the response from the children. Lion, Singham, Sher. Yes. You are making the students involved in that story. Making the children to involve in the story or whatever you teach is very, very important for a teacher. That is the way we have 3 sessions of teaching. That is, before entering to the lesson, you have to give a foundation, what you are going to teach. While teaching, you have to be very depth what you are teaching. After completing, recapitulation. These 3 things when a teacher does, success falls at the feet of the teacher. That's the simple way of getting success. बिल्कुल सर. Switching from Tamil script to Devanagari must have been tough. What's your secret to making that easier?
a child when learns a new language, Kala Akshar Bhains Barabar. That is a proverb in Hindi. Any child when learns a new language, that is very difficult for the child, but the teacher should make it easy. That's the important point. Hindi also you have sa, sha, sha. In Tamil you have got la, la, la. Typical. And in Hindi, you have got kavarg, chavarg, tavarg, tavarg, pavarg. Ka, kha, ga, ga, nga, cha, cha, ja, ja, nya, ta, tha, da, dha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pa, ba, ba, ma. It has become easy, Samriddhi. Yes. Since you are a Hindi student, you know very well because right from KG you have been learning it. Yes, sir. When the same kavarg, chavarg, tavarg, tavarg, pavarg is taught to Tamil students, in Tamil we have got only one ka, Yes, sir. one cha, one ta, one ta, one pa. So it will be a kind of big confusion for the students. But that is the speciality of a language. When you learn other language, that language also have the same similarity of your mother tongue, then what is there? Nothing you are learning new. A new thing always should be different and you should make yourself accommodate according to that. That's more important. The teacher's work is making the students to feel at home. When you teach Tamil, the students whose mother tongue is Tamil, they feel at home. Similarly, when you teach any language, for example, Hindi, make them more comfortable with that. What is needed? Involve. Make the students to tell along with you. For example, if I say ka, kha, ga, ga, nga. In LKG, UKG, primary level, for ka, in order to remember the letter, that children are taught with example words like anar, ka, kalam, kha, khargosh. Similarly, when the children learn Hindi, the Tamil children learn Hindi, we go with the example words. So by that way, they remember the letter and they learn a word, Hindi word. For example, ka, kalam, kamal. That means they learn two words, kalam, pen, kamal, lotus. So likewise, we have to encourage the children. Any child will have some boredom sometimes. But the teacher should know that which is the second, what is the duration when the child becomes kind of restless. And there you have to capture the nerve of the child, see that they are encouraged and they again involve in learning. So likewise it goes. Quite interesting profession teaching is. Yes, sir. That's a very interesting way to teach the students. Sir, as per mentioned in your profile, you had been an NCC officer. Do you think discipline is missing in today's generation? Everywhere the problem comes of discipline. Discipline is the bedrock of life. Anybody who spend their life in a disciplined way, finally they succeed. That secret mantra is to be taught to anyone. See, we don't deal only with school children in Tamil Nadu. As you put right question, that learning of Hindi or teaching of Hindi. In Tamil Nadu, I can tell you that from a same family, a mother of 45 years of age, a son who was doing 12th standard of 17 years of age, and a daughter of 6th standard of 11 or 12 years of age. All the three were learning Hindi under me. So we deal different category of people. And the maturity level also differs, no? When you go with 40 to 45 years of a woman, and she will have high maturity, and teaching her is easy. And similarly, 17, 18 years of a boy who is preparing for his plus 2 examination, higher secondary examination or inter-college, he will be having a different mindset. A student of 6th standard. And to your wonder, I have got even 80 years of aged person also learning Hindi from me. So, different category people, and it's a difficult, tough task for us to deal all. But I enjoy it. And see that according to 80, I go. According to 6th standard, I'll go. What is needed? There comes the teaching technology. Teaching and art, both are very, very important. When a teacher goes with art, he gets success. That's the reason I told you, drama, enact it, poem, sing it, story, narrate it. You got success. Indeed, sir. Sir, you are also an artist and a performer. How does that creativity show up in your teaching?
I told you, no, I have around 35 to 38 years of service in teaching, and I've got around 20 years of drama acting in All India Radio. Both are kind of twin sisters, twin brothers. Yes, sir. जुड़वे बच्चे हैं ये. A teacher, when he is in the process of teaching, surely the action which is done in All India Radio helps him. It happened with me also. All India Radio helped me to teach well, and the teaching helped me to perform well in All India Radio. Mutual. Sir, it's a humble request. Yeah. Can you please sing us 2 lines? Today is an auspicious day. Mahakavi Subramanya Bharatiyar. Yes, sir. And I would like to tell you, he's a revolutionist poet of Tamil Nadu who came to Kashi at the age of 17 or 18 in the year 1898, I remember correct. 5 years he was here with his aunt. And you know one thing, his birthday is considered as Language Day of our country. Credit goes to our Honorable Prime Minister Modi ji, who has made it. And I remember his words. His poems are always, it is said, सुब्रमण्य भारती की कविताओं को सुनाने से मृत शरीर में भी जान फूंकने की शक्ति उनकी कविता में है. See the inspiration what you are getting. ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா 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 உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா வா வா. इसका क्या मतलब है? ऐसी आंखों के साथ तुम्हें रहना चाहिए भारतीय बच्चों कि तुम्हारी आंखों में चमक आ जाए. उस चमक के साथ आ जाओ. उस चमक में देशभक्ति चमकनी चाहिए. उर्दी कोंड नेंजिनाई वावा. इसका मतलब क्या है? ऐसा हृदय तुम्हारा होना चाहिए कि जिसमें हिम्मत हो, धैर्य हो, किसी भी विषय का सामना मैं करूंगा और अपनी भारत की जीत उसमें हासिल होगी. ऐसी एक जोरदार और जोशीली कविताएं उन्होंने लिखी थी. उन्होंने एक कविता लिखी है, उसे मैं कहूंगा, பெற்ற தாயினும் பிறந்த பொன்னாடும் பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவ வாணினும் நனி சிறந்தனவே. பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் नற்றव वानिनुम ननी सिरंदनवे. इसका अर्थ क्या है? पेट्र तायुम, ताई का मतलब माता. पेट्र ताई का मतलब जिस माँ ने जन्म दिया वो. पिरंद पोन्नाड, पिरंद का मतलब जन्म लेना. पोन्नाड, नाड का मतलब है देश. जिस स्वर्ण देश में तुम्हारा जन्म हुआ है वो. सो पेट्रतायुम पिरंद पोन्नाडुम नट्रव वानिनुम. वानिन का मतलब है स्काई, लेकिन नट्रव वानिनुम का मतलब बड़ी बड़ी तपस्या करके पाए जाने वाले स्वर्ग, उससे भी श्रेष्ठ है. इसी को संस्कृत में कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. जिस जननी ने हमारा जन्म दिया, जिस जन्मभूमि पर हमारा जन्म हुआ, ये दोनों स्वर्गात गरीयसी, स्वर्ग से भी गरीयसी, श्रेष्ठ है ना? सही. अरे उनके बारे में कहता जाऊं तो ये पॉडकास्ट देखने वाले सबके मन में एक जोश आ जाएगा कि भारत माता की जय बोलना शुरू कर देंगे. इतने अच्छे कवि हैं. कल भी मैं यहाँ अपने बच्चों को जो सिखा रहा था, सनबीम वरुणा के स्कूल के बच्चों को, 8th A और 8B आप लोगों को, आई फेल्ट वेरी हैप्पी. तमिलनाडु में मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, संस्कृत भी पढ़ाता हूँ, और संस्कृत विशेष रूप से सभी लोगों को पढ़ाता हूँ. लेकिन मैं उन लोगों के बारे में तुम्हें बताना चाहूँगा जो वेद सीखते हैं. वेद भारती करके एक संस्था है जिसके ओर से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वेद सिखाते हैं घंटपाटियों की सहायता से. बहुत सारे सीखते हैं. उसमें एक कमी क्या है, सभी लोग जो सीखते हैं वो तमिल के माध्यम से सीखते हैं. वो स्क्रिप्ट जो है वो तमिल की स्क्रिप्ट होती है, जबकि वेद तो संस्कृत में है, और संस्कृत में तो है क ख ग घ ङ, वो वाला कवर्ग चवर्ग जैसे दोनों में देवनागरी में. इसलिए मैंने क्या फैसला किया, जो लोग वेद सीखते हैं उनको संस्कृत सिखाएंगे ताकि वे वेद संस्कृत के रूप में संस्कृत के द्वारा सीखें. अब उदाहरण के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, वह भ आना चाहिए, लेकिन तमिल में एक ही प है, वो कहेंगे भगवते. उच्चारण में गलती है, अर्थ में भी परिवर्तन है.
एक ऐसी भाषा, अभी मैं विनीत जी से बात कर रहा था जो 7वीं और 8वीं के समन्वयक हैं, वो कर या पर के बारे में कह रहे थे। हिंदी एक विचित्र भाषा है, उसमें देखिए भिन्न अर्थ हैं। पर है तो पर के 3 अर्थ हैं। एक पर तो मेज पर सेलफोन है, पक्षी के पर होते हैं, विंग्स हो गया। मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूँ, अगर मैं इसे तमिल में कहूँ तो तुम समझ नहीं पाओगी, परंतु यहाँ परंतु का जो प्रयोग है वो पर का भी सो पर के 3 अर्थ हो गए हैं। पर मेज पर पक्षी के पर होते हैं, पर मैं कहता हूँ पर तुम समझ नहीं पा रही हो तमिल में। ये जो होती है, इसी तरह कर को ले लो। कर, मैं काम करता हूँ, हमें सरकार को ठीक तरह से कर अदा करना है, टैक्स। और एक कर हाथ। सो एक ही कर जिसके 3 अर्थ होते हैं। सो लैंग्वेज, वही स्पेशलिटी है लैंग्वेज की। सो यहाँ मैं क्या कह रहा था, तमिलनाडु में जो वेद भारती संस्था के द्वारा मैं वेद सीखने वालों को संस्कृत पढ़ाता हूँ कह रहा था ना, उन लोगों को कुछ श्लोक भी सिखाता हूँ। उसमें काल भैरवाष्टक भी मैंने पढ़ाया है। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी बृंद वंदितं दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। ये वहाँ के लोगों को मैं सिखा रहा था, लेकिन क्या कहूँ कि काशी तमिल संगमम की इस पुण्य स्मृति में हम जो 50 अध्यापक शिक्षक शिक्षिका यहाँ आए हुए हैं, काशी में आए हुए हैं, काशी में आकर सनबीम वरुणा के बच्चों को काल भैरवाष्टक भी मैंने पढ़ाया है, तो मुझे मन में बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। ये सब टीचिंग में चलता है, जिसके मन में पैशन हो टीचिंग का। ये प्रोफेशन के रूप में नहीं होना चाहिए, पैशन होना चाहिए किसी भी विषय को। और टीचिंग तो भविष्य के नागरिकों को बनाने का एक श्रेष्ठ काम कर रहे हैं शिक्षक। अगर ये लोग उसे एक सेवा के रूप में, यद्यपि सबको धन की जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन धन ही प्रथम ऐसा मानने वाला सेवा का नहीं होता। सो सेवा में मेवा है, और भारत की सेवा में मेवा है हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी, मोदी जी, योगी जी, ये 2 देश की सेवा कर रहे हैं। हम भी उसमें पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं। और एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा समृद्धि, आप लोग 8वीं ए और बी के बच्चे, जो 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, तमिल सीख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप तमिल सीख रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये बात अच्छी तरह गिरह में बांध लेना कि आप आज एक ऐसा बीज बो रहे हैं एकता का, जो बाद में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बनने वाला है, शाल वृक्ष बनने वाला है। भारत को जोड़ने का काम आप करने वाले हैं भविष्य में। बिल्कुल सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कृपया कुछ ऐसे पल को साझा करिए जब आपको लगा हो कि शिक्षण में कला का समावेश होना आवश्यक है। बिल्कुल, समावेश की आवश्यकता है। शिक्षा एक कला है, शिक्षा एक विज्ञान है। विज्ञान और कला जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। विज्ञान जीवन जीने के लिए कमाने का रास्ता बताता है, और शिक्षा जीवन जीने की कला बताता है। सो उस शिक्षा में कला का समावेश अवश्य होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था ना, नाटक को मंच पर चढ़ाकर पढ़ाओ, कविता को गाकर पढ़ाओ, और कहानी को वर्णनात्मक पढ़ाओ, ये सब कला के अंतर्गत आते हैं। Sir, on a lighter note, which one is harder, performing in All India Radio or getting a student to perfectly pronounce the Tamil R? दोनों ही कठिन है उन लोगों के लिए जिसे कठिन मानते हैं, लेकिन दोनों ही मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं उस पर अपने को दिल जान से लगा देता हूँ। ये क्या है, ऑल इंडिया रेडियो में ऐसा होता है कि आपके हाथ में एक नाटक का स्क्रिप्ट दे देते हैं। नाटक में जो पात्र जो डायलॉग डिलीवर करता है, उसे आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन में दिखाना चाहिए। उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सफल हो जाते हैं हम, अगर उसमें हम अनुभवी होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक कक्षा में समझ लो कि तुम्हारी कक्षा है, उसमें 40 बच्चे हैं, 40 समृद्धि की तरह हैं क्या? समृद्धि को मैं टॉप मानूंगा उसमें।
होंगे 40 में से 20-25 उच्च श्रेष्ठ वर्ग के होंगे और 10-15 बच्चे मीडियाकर होंगे और 4-5 बच्चे तो कमज़ोर होंगे ही, लेकिन कमज़ोरों को श्रेष्ठ बनाना ही एक अध्यापक का काम है। ये चलता है। Yes, sir. Sir, if you could take one modern gadget back to ancient Tamil poets, as this is a technological era, what would it be? A projector, a mic, or a strong filter coffee? फिल्टर काफ़ी तो पीने के लिए बहुत पसंद है, क्योंकि तमिलनाडु में काफ़ी, वो भी फिल्टर काफ़ी, पाउडर की नहीं, नेस्कैफे वो वाला आएगा, लेकिन फिल्टर काफ़ी जो होती है उसका स्वाद ही अलग है। एक प्रसिद्ध का डायलॉग है, काफ़ी ना फिल्टर काफ़ी था बेश बेश रोम्ब नन्नर्क। इसका मतलब है काफ़ी हो तो फिल्टर काफ़ी, और वो काफ़ी बहुत ही अच्छी है ऐसा कहेंगे। लेकिन माइक को ले लो। माइक सभी विषयों को समझाने के लिए, छात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए, और ज़्यादा तकलीफ न उठाकर कम आवाज में मॉड्यूलेशन में ये माइक बहुत काम आता है। सर, मैं होती तो मैं भी यही चूज करती। अच्छा सर, नाउ इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर राउंड। Oh. आर यू रेडी? हाँ, कर लेंगे। तमिल और हिंदी, हु हैज बेटर रिदम? दोनों। एक कवि से, एक माँ से पूछो कि आपके लिए बाई आंख अच्छी है या दाहिनी आंख, माँ कहेंगी दोनों। माँ कहेंगी माँ के 2 बच्चे हैं, उनसे पूछो कि बड़ा बच्चा आपको अच्छा लगता है दूसरा, दोनों। मेरे लिए दोनों है। तमिल तो मातृभाषा ठहरी और हिंदी तो राष्ट्रभाषा ठहरी। इन दोनों के बिना क्या जीवन है भारत में। वन हिंदी वर्ड यू विश एग्जिस्टेड इन तमिल? कल्याण करके एक चलता है। तमिल में कल्याणम का मतलब है विवाह, और ये संस्कृत में कल्याण का मतलब है वेलफेयर, भलाई। उसी कल्याण का हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कोई आशीर्वाद देता है तो कल्याण प्राप्तिरस्तु, इसका मतलब भलाई हो तुम्हारी। और तमिल में कल्याणम कहेंगे तो शादी चलता है। यदि भी तुम्हारा रैपिड फायर है, लेकिन तुम्हारे पूछने का तरीका ऐसा है और सवाल भी ऐसा है कि मुझे उसमें ज्यादा कहने का मन होता है। बिल्कुल सर। मदुरई या काशी, और क्यों? मदुरई और काशी के बीच में घनिष्ठ संबंध है समृद्धि। पहले मैंने कहा था सुब्रमण्य भारतीय जी के बारे में। वे तमिलनाडु में पैदा हुए, अपनी 18 साल की उम्र में यहाँ आए। उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया काशी का उनका जीवन। काशी में उनका जो 5 साल का रहने का जो था, उसने उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर खड़ा कर दिया। काशी धर्मभूमि है और तमिलनाडु मदुरई कर्मभूमि है। यहाँ पैर रखो तुम्हें पुण्य है, वहाँ भगवान की अर्चना पूजा करो पुण्य है। सब कहीं भगवान है, सब कहीं भारतीय है। ये काशी और मदुरई दोनों को मैं अलग करके नहीं देखना चाहता। यहाँ काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णी मैया है, और वहाँ मीनाक्षी मैया और सुंदरेश्वर पापा है। यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब कहीं एक ही है। टीचिंग हिंदी इन मदुरई, अ कल्चरल ब्रिज और जस्ट अ जॉब? ये बहुत बढ़िया सवाल। काशी तमिल संगमम 4.0 के मद्देनजर रखते हुए मैं कह रहा हूं, ये बिल्कुल ब्रिजिंग काइंड ऑफ कनेक्टिंग वॉल है। ये जो आप लोग करने वाले हैं भविष्य में, मैं अभी कह रहा था, प्रोफेशन तो कुछ भी प्रोफेशन चलता है। प्रोफेशन है तो उसमें पैसा कमाने का एक उद्देश्य आ जाता है, पैसा दूसरा, लेकिन देश की सेवा। ये जो हिंदी सिखाते हैं तमिलनाडु के बच्चों को और तमिल सिखाते हैं काशी के बच्चों को, इसके पीछे हम एक बुनियाद बना रहे हैं। ऐसी एक बुनियाद जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत करके हम जो कह रहे हैं, उसको, उस सपने को साकार करने का उद्देश्य है उसके पीछे। बिल्कुल सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, जी। बिगर चैलेंज, हिंदीज जेंडर्ड नाउन्स और तमिल्स रेट्रोफ्लेक्स्ड साउंड्स? मैंने पहले ही कहा था ना, ये न होने पर वो भाषा नहीं होती है। तमिल की भाषा की कुछ खासियत विशेषताएं हैं, हिंदी की कुछ विशेषताएं हैं, और संस्कृत की कुछ विशेषताएं हैं। कोई विदेशी भाषा हो उसकी भी विशेषता है। ये मोनोटोनस हो जाएगा ना, एक ही विषय को बार बार सीखोगे, तो डिफरेंट सीखो और अपने को और भी आगे बढ़ाओ। यहाँ और एक बात मैं बताऊंगा समृद्धि, एक भाषा अगर तुम्हें मालूम हो तो तुम एक व्यक्ति के बराबर हो। अगर तुम्हें 2 भाषाएं मालूम हो, 3 भाषाएं मालूम हो, जितनी अधिक भाषाएं मालूम हो उतने अधिक व्यक्तियों का संगम तुम में है। You are 3 in 1 if you know 3 languages. If you know only 1 language, you are only 1. Just imagine.
3 in 1 मतलब समृद्धि हिंदी में भी किसी का सामना कर सकती है, तमिल में भी वो किसी से बात कर सकती है, अंग्रेजी में भी किसी से बात कर सकती है। विशेष रूप से हमारे सनबीम विद्यालय में तो संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। सो 4 भाषाएं जानने वाली एक बच्ची 4 लोगों से वार्तालाप करने में सक्षम हो सकती है। इसलिए जितनी अधिक भाषाएं जान लेंगे उतनी अधिक आपकी भलाई होगी। बिल्कुल सर। योर फेवरेट क्विक बाइट, इडली या वड़ा? इडली अच्छा है सेहत के लिए, जल्दी हजम हो जाता है, पाचन शक्ति उसमें अधिक है। वड़ा यद्यपि रुचि के लिए, टेस्ट के लिए ले सकते हैं, लेकिन इडली हमेशा सबके लिए भला है। देखो, इडली यूनिवर्सल फूड है। यस सर। योर चॉइस ऑफ बुक्स, फिक्शन या नॉन फिक्शन? देखो, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, सभी प्रकार के विषयों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षक हैं वो अपनी रुचि के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ रहे हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि भावी नागरिक को बनाने के क्षेत्र में वो लगे हुए हैं। सभी विषयों को पढ़ लेना और सभी विषयों को, उस विषय को उसी प्रकार का एक्सप्रेशन के साथ पहुंचाना है बच्चों तक। इसलिए मुझे ये वो करके मैं किसी को भी टालता नहीं। मैं आपको भी बताऊंगा, जब माता जी आपको खाना खिलाती है, मुझे ये सब्जी पसंद है, वो सब्जी पसंद है करके अलग अलग नहीं करना है। सभी सब्जियों को खाना है, सेहत के लिए अच्छा है। सभी विषयों को पढ़ना है, शिक्षक के लिए अच्छा है। बिल्कुल सर। एट द एंड आई वुड लाइक यू टू हैव एन एडवाइस बाय यू फॉर द यंग जनरेशन लाइक अस। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, हम सब एक मैया के बच्चे हैं, भारत मैया के। सुब्रमण्य भारती ने एक कविता कही थी, 30 கோடி முகமுடையாள் எனில் மொயம்புற ஒன்றுடையாள், செப்பு மொழி 18 எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையாள்। इसका मतलब क्या है? जब सुब्रमण्य भारती जी का समय था, तब हमारी भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। अब हो गया 5 गुना बढ़ गई है जनसंख्या। उनकी कविता की पंक्तियों का अर्थ है, 30 கோடி முகமுடையாள், भारत मैया 30 करोड़ चेहरे वाली है। 30 கோடி முகமுடையாளில் மொயம்புற ஒன்றுடையாள், फिर भी ஒன்று का मतलब एकता में रहने वाली है। सेप्पु मोड़ी 18 बोली जाने वाली भाषाएं 18 भाषाएं हैं उस जमाने में। एनिल सिंदने ஒன்றுடையாள், फिर भी उसकी विचारधारा ये है कि भारत महान है, भारत मेरा देश है। इसलिए मैं ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सबको मेरी ओर से, विशेष रूप से बच्चों को, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को मेरा कहिए, मैं आपको उपदेश दे सकता हूँ। इतनी उम्र है, इतना तजुर्बा, अनुभव है। मैं चाहूँगा कि भाषाओं की होड़ लगा दीजिए कि सारी भाषाएं आपके पास आकर झुक जाए कि मुझे सीख लो, मुझे सीख लो। सीखे जितनी भाषाएं, जितनी हो सकती है आपसे। अलावा इसके अनुशासन, बीच में एक सवाल तुमने अनुशासन के बारे में पूछा था। किसी भी विषय हो, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को स्वयं अनुशासन के अंदर रखिए। ये नहीं कि मेरे पिताजी मुझे उपदेश दे रहे हैं इसलिए मैं सही रास्ते पर चलूंगा, मेरी माताजी कह रहे हैं इसलिए मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरे अध्यापिका मुझे देखेंगे इसलिए मुझे सही रास्ते पर जाना। नहीं, आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे एंड यू सेट योरसेल्फ एज एन रोल मॉडल, एग्जाम्पल टू अदर्स, particularly for the youngers. Sometimes to your wonder, you may be an example to your elders too. देखो, इतनी छोटी बच्ची है लेकिन इसमें कितना ज्ञान है, कितनी अकल है और कितना अच्छा व्यवहार है। इसलिए सबको कहूँगा कि हम एक देश में रहते हैं, उस भारत मैया की श्रेष्ठता के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसको दुनिया भर में, विश्व भर में नंबर 1 स्थान पर पहुंचाने के लिए मोदी जी और योगी जी जैसे अच्छे अच्छे महानुभावों ने जो जो काम किया है, कर रहे हैं, करेंगे भी, हम उनके साथ रहेंगे। और भारती जी ने जो कहा था 30 कोड़ी मुखम उड़ैयाळ, अब तो 150 कोड़ी मुखम हो गया है। फिर भी हम सब उस मुख में एक मुख है। भारत मैया के इतने सारे करोड़ों चेहरे पर हमारा चेहरा, मुरलीधर का चेहरा है, समृद्धि का चेहरा है और सबों का चेहरा है। हमें गर्व होना चाहिए कि मैं इस देश का पुत्र हूँ, इस देश की पुत्री हूँ और इस देश के लिए ही मेरा कर्म धर्म सब रहेगा। करो या मरो अपनी देश के लिए, ये विचार सबके मन में होना चाहिए। We are very much thankful for your wise words, sir. So with this, we wrap up our wonderful conversation.
Dear audience, remember, languages are bridges to new worlds. So keep learning and keep exploring. Stay tuned to our channel Sanvad Sanveem School Varuna for next thrilling episode. This is Samriddhi signing off. Thank you and Jai Hind. एलोरकम वणकम, सबको धन्यवाद। भारत माता की जय।